नाम आकांक्षा पटेल है। मैं यहाँ की एग्जीक्यूटिव मेंबर। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो सबको हम टॉपिक बता देते हैं, ठीक है। कौन क्या टॉपिक है हम लोग का? जय हिंद जय भारत, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, सेकंड इंडियन इन स्पेस, ठीक है। और सेकंड है डोनाल्ड ट्रंप ऑन इजराइल एंड ईरान, अल्फा जेनजी एंड मिलेनियंस, मैरिटल मर्डर केसेस इन इंडिया, अबाउट योर इनर फीलिंग्स फॉर जगन्नाथ यात्रा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम बोल रहे हैं, कौन करेगा? अजीत। Morning all of you. As I have decided yesterday that I am going to speak on the marital issue and so much of murder cases happening in recent days. And one more topic I had decided, which was Lord Jagannath and his Rath Yatra. So I am going to start with these marital affairs and the murder cases related to it. I believe and I think, not I believe, I can see in अरे कहना क्या चाहते हो? in nowadays what is happening is people getting married and after a year or two or more than that or within months or within weeks these things are happening, what you all have heard in recent days. So I think that the basic issue behind this, the main reason behind this is premarital affairs, which means the affairs the boy or girl having before their marriage. In all the cases we have seen that he or she was or had an affair with some other person before their marriage. So after getting married, the bond between them does not match. So these things should be understood between us, that if we had any relationship or any affairs with any person, whether he is a man or woman, anyone, I am not going to point out certain men are doing this and certain women are doing this. So this thing is not a judging point of view from my side, because these things are happening for many days. In earlier days we didn't have mobile phones, social media, so these informations were not capable to reach to us, and nowadays it has become a very easy process. So when these things are coming to us, we are knowing it very well that what is happening, and after its proper analysis we can find that premarital affairs are the main reason behind this. So I, as a, you can say, youngsters of this generation, would like to suggest you all that if you all had or have any affairs with anyone, as my brother or sister or any friends or my colleagues or anyone working, so my message is to all that any affairs if you have with any person, be with him, keep with him, live happily with them. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Forever. Good morning to all of you. My name is Akshay Kumar Patel. I am the founder, coordinator and chief executive officer of this group. And this initiative has a key thing that is called GD, group discussion. That is time limited way of expressing your personal thoughts. So my topic today is Shubhanshu Shukla, group captain, the first Indian to reach ISS, International Space Center. And as you guys know that we Indians are very much capable doing any field, any work in any field. Shubhanshu Shukla is one of them. After 41 years, India is reaching the space again. So it is a proud moment for all of us that through the eyes of Shubhanshu Shukla, we are observing India from the space. So that was the good news I just want to share. Good morning everyone. अच्छा सब सुने। मैं आज जगन्नाथ यात्रा के बारे में बोलना चाहूँगा कुछ। तो जगन्नाथ यात्रा जो है ये सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा का महत्व ये है कि ये यात्रा निकाला ही इसलिए जाता है कि ये संसार को ये संदेश दिया जाता है कि जो ईश्वर है सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते हैं। ईश्वर जो है हमारे आसपास आते हैं, हमारे पास आके भी वो हमें दर्शन देते हैं, ठीक है। मंदिरों में सिर्फ उनको हम नहीं देख सकते हैं। ईश्वर जो है हमारे हर जगह, हर आसपास के प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ यात्रा का मकसद यही है कि ईश्वर को सिर्फ हम मंदिर में ना देख के हम अपने आसपास देखें, सभी जगह पे देखें, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहिए। वेरी गुड। मेरा नाम खुशी कुमारी है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो खुशी? 6th क्लास में। और यहाँ पे कोलकाता में आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको कैसा माहौल लग रहा है? गाँव का याद आ रहा है? यहाँ पे इतना हरा हरा घास, ग्रीन हाँ, पेड़, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू बोलो सबको। हेलो एवरीवन, मेरा टॉपिक था जो आजकल मैरिटल अफेयर्स हो रहे थे, मतलब हो रहे हैं, और लड़के लोग जो ऐसा सोचते हैं कि मैन आर नॉट सेफ। तो मेरा ये मतलब इसमें बात था कि जितने केसेस लड़कियों के लिए होते हैं उतने केसेस शायद ही लड़कों के लिए होते होंगे, और ये 3-4 केसेस जो आजकल निकल रहे हैं, तो इस वजह से जो लड़कों का डर होने लग गया है कि हमें शादी नहीं करनी है, कैसी लड़कियां मिलेगी, कहीं मार तो ना दे मेरे को। पर मीम्स भी बन रहा है। हाँ, पर अगर यही चीजें लड़कियां सोचने लगती तो फिर शायद किसी लड़के की शादी नहीं होती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि बहुत मतलब एंशिएंट टाइम से ही लड़कियों पे जितने टॉर्चर होते हैं, लाइक डाउरी सिस्टम, फिर लड़के लोग भी करते थे पॉलीगैमी वगैरह, सती प्रथा भी होता था, और बहुत सारे केसेस होते हैं लड़कियों को, लाइक जितने तो पता ही नहीं होंगे हम लोग को, और डेली हर सेकंड में एक लड़की का रेप होता है। तो ये सब जो केसेस हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि मेन आर नॉट सेफ वाला जो सो कॉल्ड टर्म अभी निकला है, तो एक्चुअल में women are not safe in our country। तो पहले सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
मेरा जैसे कि जीडी का जो भी पॉइंट था 5 पॉइंट, मैंने उसको लेकर कोई भी कुछ भी नहीं सोचा। मेरा टॉपिक है लास्ट वीक जो हम लोगों ने सब कोई एक साथ जो योगा किया, जो योगिक संघ के साथ किया। एक छोटा सा बात बोलेंगे, जो योगिक संघ की तरफ से जो छोटा सा हम अक्षर ने जो अचीवमेंट किया, वो सिर्फ अक्षर का अचीवमेंट नहीं है, वो आप सबका अचीवमेंट है। हमारा काम ज्यादा फैमिली का अचीवमेंट है और बहुत कुछ सीखने का। जैसे कि योगिक संघ में जो जब हम लोग सब कोई बैठे थे तो एक अंकल जब सबको समझा रहे थे, बहुत अच्छा सब कोई सीखने को मिला, बहुत सब कोई ने सीखा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कि एक अंकल वॉकर लेकर आए थे, 80 अबव थे, वो वॉकर लेके आते थे, वो लास्ट 30 साल 40 साल से आते थे। तो वो बोलते हैं हम लास्ट 30 साल 40 साल से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी आके जुड़िए। उनको यहाँ तक कोई बोलता था कि पिक करके घर छोड़ देते हैं, यहाँ तक वो ना बोलते कि नहीं हम घर अकेले चले जाएंगे। उस एज में अगर उतना है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी करते हैं। जो हम लोग प्रोसेशन निकालते हैं, जो हम लोग करते हैं प्रोसेशन, इसमें हम लोग खुशी स्प्रेड करते हैं, लोगों से खुशियाँ बांटते हैं। और हम लोग जो रथ के चेहरा करते हैं, जो रथ टानते हैं, हम लोग उससे हम लोग को यूनिटी फील होता है कि एकता, हम लोग सब एक है, कहीं एक बात में चल रहे हैं, कोई अलग नहीं है। भले एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन जब डिवोशन का बात आता है सब एक संग आ जाता है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एक ही बात में चलता है सब। तो ये बहुत अच्छा बात है। हम लोग के लिए हर फेस्टिवल हम जो बनाते हैं श्रद्धा। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राहुल कुमार दास है और जैसे कि कल 5 टॉपिक मिले थे जिसके बारे में हम लोग की अभी जितने लोगों ने बोला मैरिटल अफेयर के बारे में, और उसमें एक वर्ड मोस्टली यूज किया गया कि #men are not safe। ये सिर्फ नाम का है कि men are not safe, पहले से ही वुमेन्स आर नॉट सेफ। अब वुमेन्स को भी तो काउंटर करना पड़ेगा ना, मर्दों को मार के। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कहा जा सकता है कि ये एक तरीका से मेन वुमेन दोनों ही सेफ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ये नहीं देख रहा कि मतलब कहते हैं ना, जैसे भैया बोले अभी कि पिछले बार मतलब लड़के जो लोग का पहले से रिलेशन है या लड़कियां जो लोग का पहले से रिलेशन है, वो लोग उन्हीं के साथ रहे, आगे रहे, वो लोग उन्हीं के साथ है, इसीलिए ही मारा जा रहा है। और अगर उन्हीं के साथ रहना है तो घर ही में बात करे और घर ही पे फैसला ले कि हाँ हमको इन्हीं के साथ रहना है। ऐसा ना हो कि किसी और के चलते किसी और का जान चला जाए बेचारे का। तो बस हम इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे और थैंक यू हमको ये अपॉर्चुनिटी। हाय गाइस, आई एम न्यू मेंबर ऑफ हरा कामजादा। माय नेम इज रणवीर मलिक। और सबने जैसा ही कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सबने कहा है, तो मेरी एक ये बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल तो है कि सबको जिनको पसंद नहीं है वो मर्डर कर दे रहे, लेकिन इसमें मेरी तरफ से ये है कि प्रशासन की भी थोड़ी गलती है। क्योंकि अगर प्रशासन अगर थोड़ा सा सख्ती रहेगा तो अभी के टाइम में कोई मर्डर होने का कोई ये नहीं है, चांस नहीं है। क्योंकि इंसान के अंदर से क्या बोलते हैं उसको, अंदर का जो सही पकड़े हैं डर वो खत्म हो चुका है कि उनको बस यही लगता है कि एक मर्डर कर देंगे उसके बाद जेल चल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, लाइफ खत्म। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि किसी की जान लेना कितना बड़ा जुर्म है, क्योंकि कई लाखों जन्मों के बाद एक इंसान का जन्म आ रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे इंसान के लिए उस पर्सन का जान ले रहे हैं। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन इसमें थोड़ा सख्ती करे। सब कोई वो मैरिटल अफेयर्स के लेकर बोला है, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस यही इतना ही बोलना चाहेंगे कि देखो ये जो अभी चल रहा है ना कि वो मैन और वुमेन का सेफ्टी को लेके सही बोल रहे हैं लोग कि सभी कोई अभी सेफ नहीं है। और रहा बात ये वुमेन्स का, तो वो हम बता दे रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैन मतलब वो एक देखा जाता है कि हम लोग के पापा, हम लोग जो और हम इस टॉपिक पे भी बोलना चाहते थे वो अल्फा जेन ज़ी और मिलेनियल्स के बारे में। तो देखो ये सारा चीज़ एक तरह से रिलेटेड है देखा जाए तो। तुम लोग ये चीज़ नोटिस करना, वो मैन हो या औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, पहले ये जो केसेस होता था जो हम लोग मतलब कुछ दिन पहले जो सुनते थे उतना नहीं होता था, क्योंकि अभी का जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत चेंज हो गया है। देखो हम ये चीज़ धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं, तुम लोग नोटिस करना कि अभी के जो बच्चे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि सब गलत है, लेकिन वो लोग जो अपने फ्यूचर को लेके या क्या सीरियस टॉपिक है उस पर वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों को अभी ज़्यादातर हम नोटिस करते हैं इंस्टा मतलब जितना भी सोशल मीडिया है वो लोग एक्टिव रहते हैं, वहाँ के थ्रू वो लोग हाँ वो करते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं बोलने जाएंगे, यही कंक्लूजन है कि कोई भी सेफ नहीं है, बस हम लोग को अपने सावधानी के साथ और सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए। हम लोग के अंदर भगवान इतना शक्ति दिए हैं कि हम लोग अगर कोई भी चीज़ को अच्छे से समझे कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं। माँ बाप ही सिर्फ हम लोग को नहीं सिखा सकते, ऐसा नहीं है, वो लोग तो हम लोग को गाइडेंस देंगे ही उनके आशीर्वाद से, लेकिन हम लोग के अंदर भी इतना होना चाहिए कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं। अल्टीमेटली फैसला हम ही लोग को लेना पड़ता है। अगर हम लोग लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, तुम लोग सभी केस में सुनना कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अगर हम लोग उसको अंडरस्टैंडिंग और अपने समझ के साथ चले तो कुछ भी ये सब नहीं होगा। तो सब कोई जीडी में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए। इसका मेन एम यही था कि हम लोग सबका पर्सपेक्टिव जाने, उन लोगों से कुछ सीखे और अपने द्वारा भी उन लोगों को कुछ बताएं कि हम लोग क्या सोचते हैं। अगर हम लोग अपना पर्सपेक्टिव लोगों के साथ शेयर करेंगे ना कहीं हम लोग में डेवलपमेंट आएगा। तो इसी थॉट के साथ कि हम लोग जब भी जीडी करें तो किसी से कुछ सीखे और एक डिसिप्लिन के साथ हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दे और सबको मतलब चीयर करें कि वो इंसान सामने आके खड़ा होकर बोल पाए। अभी हमारे बीच न्यू मेंबर नहीं, वो पुरानी मेंबर भी रही हैं, वो ज्वाइन करेंगी, कुछ अपने बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इस बात बोलना चाहूँगी कि जेन ज़ी एंड अल्फा बोलिए मिलेनियल्स के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, माइंड जनरेशन एक गैप आ गया है, हम लोग के वे ऑफ थिंकिंग भी चेंजेस होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है कि पेरेंट्स हमें नहीं समझ पाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और इस एज में हमें भी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, बट दो वो हमारे भलाई के लिए सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर एक पॉइंट होता है जहाँ पे मेरी दोनों को समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोग ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे और आउटडोर गेम्स में ज़्यादा प्रेफर करते थे, बातों में ज़्यादा कम्युनिकेशन होता था। आजकल होता नहीं है, आजकल तो लोग लेफ्ट स्वाइप एंड राइट स्वाइप में चल जाते हैं और उसके बाद लोगों की जो कम्युनिकेशन है जो है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू ही है।
और लोग आजकल पता नहीं सो कॉल्ड फ्लेक्स करते हैं सोशल मीडिया पे एक फेक लाइफ के थ्रू, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सोशलाइज होना इज़ मच बेटर, जो कि आज के लोग नहीं कर पाते हैं। The trees hum low in the morning light. A breeze whispers dreams taking gentle flight. Soft hands of nature cradle the day, guiding our hearts to find the way. Feel the earth breathe. तो गाइस यहाँ पे कचरा उठाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्टेज उठाए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है कचरा उठा के राहुल? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करने ऐसा लग रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं, उसे कहने का मतलब है कि बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कचरा उठा के। जैसे तुमसे बात करके पॉजिटिव फील होता है, वैसे कचरा उठा के बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। ये आप फिर से बोलिए पागल। ए पागल औरत। कैसा लग रहा है कभी चूड़ी पहनना और अब कचरा उठाना, कैसा फील हो रहा है बताइए? दोनों ही काफी न्यू है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि चूड़ी पहनने वाला नया नहीं है, मतलब बहुत लोग पहना हुआ है जो कि गलत तरीके से पहना। अच्छा लगा था, ऐसा लगा वुमेन पावर आ गया। ये पीछे से लाला लाला करते करते जा रही है। A gift with the earth as our गाइस, तो कचरा उठाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे अभी ट्री प्लांटिंग भी हो रहा है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं ट्री प्लांटिंग हो रहा है, तो हम लोग पेड़ भी लगाते हैं। तो अच्छा काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, खुशी मिलता है। आप लोग भी किया करो। wild, like flowers in spring. Together we'll rise, let the future sing. The song of the wild calls us to care, to nurture the world, to love, to share. Each leaf a promise, each wave a plea, for us to protect, for all to be free. Feel the earth breathe beneath our feet, a rhythm of life, so pure, so sweet. Hope grows wild, like flowers.